ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 11 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ। ਤੋ ਇਹ ਐਕੂਰੇਟ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਨੇ YouTube 'ਤੇ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੋਪਿਕ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੋ ਫਸਟ MCQ, ਨਿਊਟਰਨ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਆਲ ਐਟਮ ਐਕਸੈਪਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਔਰ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਵੀ ਨੋ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਇਜ਼ 1। ਤੋ ਨਿਊਟਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 - 1 ਆਏਗਾ 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ, ਸਪੈਕਟਰਲ ਲਾਈਨ ਇਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਓਬਟੇਨ ਵੈਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਫਰੋਮ N5 to। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਚਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਆ, N1 ਆ, ਇੱਥੇ 2 ਆ, ਇੱਥੇ 3 ਆ, ਇੱਥੇ 4 ਆ, ਇੱਥੇ 5 ਆ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ ਫਸਟ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 4 ਤੋਂ ਫਸਟ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 3 ਤੋਂ ਫਸਟ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 2 ਤੋਂ ਫਸਟ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਟੂ N ਜਿਹੜਾ ਆ 1, ਲੋਐਸਟ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੇਮੈਨ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਇਹ ਇੱਥੇ N2 ਆ, ਮਤਲਬ 5 ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, 4 ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਰੀ 2 ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 3 ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 2 ਹੋਏਗਾ, ਹਾਇਰ 2 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਡਜ਼ ਨੋਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ S ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ 1 ਵੈਲਿਊ, ਸੋ ਔਨ 1 2 3 4 5। P ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ 2, P ਕਦੇ 1P ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। D ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ 3, ਤਾਂ D ਕਦੇ 2 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। F ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ F ਕਦੇ 3 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 2 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 6S ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯੈਸ। 3P ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯੈਸ। 4F ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯੈਸ, ਬਟ 2D ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਓਕੂਪਾਈਂਗ ਦੀ ਸੇਮ ਔਰਬਿਟਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਔਰਬਿਟਲ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ? ਸਪਿਨ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ। ਕਰੈਕਟ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ। ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 24, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 3D4 4S2 ਆਰਗਨ। ਬਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋ ਗਈ। D ਦਾ 'ਚ 10 ਆਉਂਦੇ, 10 ਦਾ ਹਾਫ 5, S 'ਚ 2 ਆਉਂਦੇ, 2 ਦਾ ਹਾਫ 1, ਤਾਂ 3D5 4S1। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਪ੍ਰੋਟੀਅਮ, ਡਿਊਟੀਰੀਅਮ, ਟ੍ਰੀਟੀਅਮ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਬਟ ਸੇਮ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਔਰਬਿਟਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ N ਇਜ਼ ਐਨੀ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ L ਦੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ 0 1 2 3, 0 4S, 1 4P, 2 4D ਔਰ 3 4F। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 4 ਹੈ, 4 ਲਿਖ ਲਿਆ। L3 ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, L3 ਇਜ਼ 4F, ਤੋਂ 4F ਇਜ਼ ਦੀ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ, ਫॉर ਈਚ ਵੈਲਿਊ ਆਫ L, ML ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਰ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2L + 1। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ, ਸੋਰੀ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ML ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 2L + 1। L 0 ਆ, ਤਾਂ 2 × 0 0, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ L0 ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ? S ਲਈ। S ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਔਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦੇ? 1 ਔਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ L ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਭਰੂੰਗੀ, 2 × 1 + 1 3, ਤਾਂ L1 ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ? P ਲਈ। ਤਾਂ P ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 3, PX PY ਐਂਡ PZ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ML ਵੈਲਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ 4D ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 4D ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ML + 2 ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ठीक है। बट इत्थे ये फॉर्मूला नहीं लगना क्योंकि इत्थे जिहड़ी है स्पिन पता कर स्पिन दित्ती हुई है इन्होंने स्पिन हाफ आ हाफ मतलब कल्ले क्लॉकवाइज आ ठीक है। डी ऑर्बिटल आ डी ऑर्बिटल किन्ने हुंदे आ 5 हुंदे आ ठीक है जी। किन्नी स्पिन दित्ती हुई है हाफ मतलब सारे दे सारे क्लॉकवाइज प्रैजेंट आ। अगर इत्थे प्लस माइनस हाफ दिता हुंदा दैन एंटी क्लॉकवाइज भी प्रैजेंट होने सीगे तो प्लस हाफ दिता होया कल्ला क्लॉकवाइज तो आंसर इज किन्ने इलैक्ट्रॉन हो गए डी च 10 दा हाफ किन्ना दैट इज 5 तो आंसर इज 5 इलैक्ट्रॉन्स। सो नैक्सट वन ये भी करन दी लोड़ नहीं। मैक्सीमम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पता करन दा किन्ने इलैक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਮਨ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਐਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲ ਦੀ 0 ਤੋਂ 4 × 0 + 2 2 ਐਸ ਔਰਬਿਟਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਪੀ ਲਈ 1 + 2 6 ਤੋਂ ਪੀ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ 3 'ਚ 3 × 2 6 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन तो पहले तुहानू कन्फिगरेशन होनी चाहिए टू फाइंड अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन। मैगनीशियम 2 पॉजिटिव नू रहन दो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव टाइटेनियम 3 पॉजिटिव इज टाइटेनियम हुंदा है 3d2 4s2 ठीक है 3 मतलब 3 इलैक्ट्रॉन गए ये चो कट दो 3d1 बचे वनेडियम इज 3d3 4s2 3 इलैक्ट्रॉन गए कितना बचे 3d2 बचे ठीक है। नैक्सट वन आयरन आयरन हुंदा है 3d6 4s2 3 इलैक्ट्रॉन कड्डे किन्ने बचे अपने को 2 इधर हो गए 3d5 तो फिल करो 3d1 एक अनपेयर्ड एक सिंगली फिल्ड है 3d2 2 अनपेयर्ड 3d5 तो जिन्ने ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन उन्ना ज़्यादा अपने को जिहड़ा है मैगनैटिक करैक्टर हुंदा तो सब तो ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन किहदे केस च आए आयरन के केस च। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मतलब एल फॉर सोडियम फॉर लास्ट इलैक्ट्रॉन इन सोडियम लास्ट इलैक्ट्रॉन सोडियम च किहदे च एंटर करदा 3s1 एस लई किहड़ा आया एस लई एल दी वैल्यू किन्नी हुंदी है 0 n = 6 n 6 दिता होया ठीक है जी। एल अपने को दिता होया 2 मैक्सीमम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन तो हुणे फॉर्मूला करके हटे हैं हाउ टू फाइंड मैक्सीमम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन अ शैल तो एल दी वैल्यू कितनी है 2 ठीक है जी। एल दी वैल्यू 2 है 4 × 2 + 2 किन्ने आ गए 10 ठीक है जी। आ कन्फ्यूज करने लिए दिता हुआ एन दी वैल्यू। हाउ मैनी इलैक्ट्रॉन इन आर्गन हैविंग m0 तो फस्ट ऑफ ऑल आर्गन की थानू कन्फिगरेशन लिखनी पैनी है 1s2 2s2 2p6 ठीक है जी दैन 3s2 3p6 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰਬਿਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰਬਿਟਲਸ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ml ਹੁੰਦਾ ਉਹ s ਲਈ 0 ਹੁੰਦਾ s ਇਹ ਵੀ s 0 p ਲਈ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ -1 0 +1 ਇਹ ਵੀ 0 -1 0 +1 तो ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 0 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ 0 ਆ 0 ਆ 0 ਆ 0 ਆ ਇਹ वाला 0 तो टोटल किन्ने 0 हो गए 5 ठीक है। तो सारे फुली फिल्ड आ 5 एक च 2 इलैक्ट्रॉन 5 × 2 10 आंसर इज 10 ठीक है जी। तो नैक्सट करन दी लोड़ नहीं इदां दे क्वेश्चन नहीं आएंगे। नैक्सट वन इज सो मैगनैटिक क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलैक्ट्रॉन ऑफ पोटाशियम तो पोटाशियम हुंदा 3s2 एस ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜੀ एल ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ml एस ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ दैट इज़ दी 0 तो विच ऑफ दी फॉलोइंग क्वांटम नंबर ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ n4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 4 l3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4f ठीक है तो आह जस्ट फॉर कन्फ्यूजन तो 4f इज़ दी आंसर। विच ऑफ दी फॉलोइंग डज नॉट मेक एनी सेंस देखो n5 आ ओके 2l2 ਹੁੰਦਾ d ਲਈ ओके n4 आ l3 ਹੁੰਦਾ f ਲਈ ओके n2 आ ठीक है l0 ਹੁੰਦਾ s ਲਈ ठीक है n7 आ l2 आ l2 ਹੁੰਦਾ d ਲਈ बट इतने की लिखा हुआ 7p तो दिस इज रॉन्ग। तो इतने फॉर्मूला लगाओ डी ब्रॉगली द HY MC ठीक है
तो इलैक्ट्रॉन आ, इलैक्ट्रॉन का मास होंगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो वेलोसिटी पता करनी है, आह आपां नूं गिवन आ 6.63 इंटू 10⁻34। लैमडा गिवन आ 600 नैनोमीटर। तो इनू कन्वर्ट करो 10⁻9 ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। नैक्सट साइन ऑफ लोड नहीं है। हाउ मैनी स्फेरिकल नोट्स आर प्रेजेंट इन 4s। तो फॉर्मूला लगाओ n-l-1। तो कितनी n की वैल्यू 4 माइनस s ऑर्बिटल है, s लिए l की वैल्यू कितनी होंगी है 0 -1। तो 4 - 1 इज 3। नैक्सट वन नंबर ऑफ रेडियल। तो सेम फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हो ठीक है। तो ये भी लोड नहीं करन दी, ये भी नहीं ज़रूरत। नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर। तो सेम फॉर्मूला n-l-1। तो 3 p लिए 1 होंगे तो 1, 3 - 2 इज 1। नैक्सट फॉलोइंग विच क्वांटम नंबर। सो नैक्सट वन इज किहड़ा ऑर्बिटल पॉसीबल आ। तो क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग सिर्फ कदे भी अपने को सेम वैल्यूज़ नहीं हो सकदियाँ। तो n3 है, l2 आ, मतलब हुण l2 आ तो d ऑर्बिटल होएगा, d किन्ने हुंदे 5 ठीक है जी। तो -2 -1 0 +1 +2 +2 कितनी बार आ रहा सिर्फ एक बार ठीक है। तो एक पॉसीबल वैल्यू ठीक है। ठीक है लोड भी नहीं करना हैगा, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट फॉर 4f। 4f तो मतलब n4 ठीक है, l की वैल्यू कितनी होंगी है 3। नाउ जिहड़ा आ इज करैक्ट फॉर एन इलैक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। तो 4f ऑर्बिटल च अगर सिर्फ देखो ml की वैल्यू तो ना ध्यान दो ना s की वैल्यू तो ध्यान दो। n4 आ l3 आ ठीक है ओके। तो आ ऑप्शन आपां सही लगता, ये क्यों नहीं सही है। n4 आ l4 हो ही नहीं सकता f ले, l2 हो ही नहीं सकता f ले, जिहड़ा m4 हो ही नहीं सकता ठीक है। तो कित्थों स्टार्ट होंदा m+3 तो स्टार्ट होंदा ठीक है जी। नैक्सट ये भी नहीं ज़रूरत। NLM respectively unpaired electron in chlorine atom for an unpaired electron of chlorine atom ठीक है जी। तो क्लोरीन एटम की आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन इज 3p5। तो आप 3p5 भरीए, दिस इज 3p5 -1 0 +1 ठीक है। n कितना हो गया 3, l कितना p ਲਈ 1 ठीक है। तो +1 कितना आ रहा एक टाइम आ रहा ठीक है। उन्होंने अनपेड इलैक्ट्रॉन बोले ना, अनपेड इलैक्ट्रॉन आए तो m कितना आ गया 1 ठीक है जी। तो आंसर इज 3 1 1। तो नंबर ऑफ रेडियल एंड 2p ऑर्बिटल्स ठीक है। तो 3 - 0 - 1 ठीक है। तो 3 - 0 - 1 ए वाला फॉर्मूला n-l-1। तो दिस इज 2 - 1 - 1 तो दिस 0, ये भी नहीं ज़रूरत करन दी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करनी है, मास आपां नूं गिवन है, किनेटिक एनर्जी ਉਹਦੀ गिवन है इन्नी। तो लगाओ फॉर्मूला h/mv। तो ऑल्सो इक्वल टू जो आप लिख सकते हैं 2me हाफ द स्केयर ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर हैव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। हाईएस्ट एनर्जी तो सारे ऑर्बिटल बना लेंगे 3d 3s कितना, क्योंकि l की वैल्यू 0 है, 4 l की वैल्यू s ठीक है, 3p। तो पहला की है 3s आंदा, फिर 3p आंदा, फिर 4s आंदा पहला भरिया जाता ना, फिर 3d आंदा। तो सब तो ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू कि होगी 3d की। तो अगर इदा तुहानूं एटॉमिक मास दिते हुए सारे एटॉमिक मास का ऐड करो 200 + 199 + 202 डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज़ 3। तो ये भी नहीं ज़रूरत। करैक्ट ऑर्डर फॉर पोटाशियम। पोटाशियम दे आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट इज 3s2 ठीक है जी। तो 3s2 इज सो नैक्सट अपने को पोटाशियम, पोटाशियम इज 3s2। तो n कितना हो गया 3, s ਲਈ l की वैल्यू 0, तो यह कला एक ही होंदा ठीक है। तो ml कितना हो गया 0, 2 इलैक्ट्रॉन ने ठीक है।
3s2 तो इत्थे प्लस माइनस हाफ होना चाहिए, ठीक है, या 0 होना चाहिए, प्लस माइनस हाफ कैंसल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर काउंट करने लिए फॉर्मूला इज़ 4l+1 पहला भी कर चुके हैं आप। नैक्सट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो फस्ट ऑफ ऑल सानू आयरन की कन्फिगरेशन लिखनी चाहिए, दैट इज़ 3d6 4s2। फिर आप कोबाल्ट की लिखते हैं, दैट इज़ 3d7 4s2। फिर आप निकल की लिखते हैं 3d8 4s2। फिर आप मैगनीज की लिखते हैं 3d5 4s2। ठीक है, हुण कितना चार्ज आया तो 3+2 इच हो गए, ठीक है जी। और अपने को एक ये हो गया, तो ये बचिया 3d5। ओके, नैक्सट कोबाल्ट 2 इलैक्ट्रॉन ये हो गए, एक ये हो गया, किन्ने बचे 3d6, तो आंसर आ गया कोबाल्ट। ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इन फोर्थ एनर्जी लैवल ऑफ फोर्थ एनर्जी लैवल, ठीक है। तो फोर्थ एनर्जी लैवल जिहड़ा हुंदा है अपने को टोटल नंबर ऑफ अटोमिक ऑर्बिटल्स नॉट इलैक्ट्रॉन। तो फोर्थ एनर्जी लैवल आप बनाने 1s 2s 2p की सेम एनर्जी, 3s 3p 3d की सेम एनर्जी, 4s 4p 4d 4f की सेम एनर्जी। तो ये फर्स्ट हो गया, सैकेंड है, थर्ड है, फोर्थ। एस किन्ने ऑर्बिटल होंगे 1, पी किन्ने होंगे 3, डी 5 और एफ 7, तो टोटल इज 16। तो सिंपल फार्मूला याद रखो, एन स्केयर। तो अपने को किन्ने एन किन्नी वैल्यू है, एन फोर्थ बोलिया, फोर्थ एनर्जी लैवल, तो 4 का स्केयर कितना हो गया 16। सोडियम के लिए सेम, सोडियम इज 3s1, तो एन की वैल्यू 3, एस लिए एल की वैल्यू 0, एम एल इज ऑल्सो 0, तो यह +1/2। ठीक है जी। इम्पॉसिबल 2s हो सकता, 2p भी हो सकता, 4d भी हो सकता, 3f नहीं हो सकता। मैक्सीमम नंबर प्रिंसीपल क्वांटम नंबर आप फाइंड कर सकते हैं 2n स्केयर का फॉर्मूला लगा के। तो ये L3 आ, ठीक है। इलैक्ट्रॉन इन अ सब शैल हैविंग, इत्थे n अपने को 4 होना, गलत दिता होया। तो L अगर 3 आ तो यह 4f बनेगा, ठीक है। F च किन्ने इलैक्ट्रॉन आते मैक्सीमम 14, 7 × 2 होंगे ना, 7 होंगे, तो 2 ना मल्टीप्लाई करके। कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर की कन्फिगरेशन होंगी 3d10 4s1, 2 पॉजिटिव मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, की बचिया 3d9। ठीक है जी। तो 2.83 वैसे तो ये सौखा ही है, अनपेड इलैक्ट्रॉन करके कढ़ के फॉर्मूला लगाना। अनपेड इलैक्ट्रॉन जिवें आयरन वगैरह दसे थे ना पिछे, तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव इज़ 3d1, निकल 2 पॉजिटिव इज़ 3d8, क्रोमियम 3 पॉजिटिव इज़ 3d, जो 2 पॉजिटिव है, सॉरी 3 पॉजिटिव है, दैट इज़ 3d3। ठीक है जी। और अपने को जिहड़ा मैगनीज 2 पॉजिटिव इज़ 3d5। ओके, तो ये 3 अनपेड इलैक्ट्रॉन हो गए जो तुसी बनाओगे, 1 2 3। ये मैगनीज 5 हो गए, ये 1 आ, 8 फिल करा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2। तो सब तो ज़्यादा अनपेड इलैक्ट्रॉन आए मैगनीज च, ठीक है। तो जो तुसी ना आ वाला फॉर्मूला लगाओगे n+2 द रूट, इत्थे 1 भर के देखो, 2 भर के देखो, 3 भर के देखो, जिहदे अनपेड वैल्यूज़ की आई वैल्यू वो आ जाऊगा। तो निकल नूं करन ते इन्ना आउंदा, मतलब अगर तुसी इत्थे 2 भरोगे तो तुहाडे कोल इन्ना आंसर आएगा। हू डिस्कवर कैथोड रे, कैथोड रे होंदियां इलैक्ट्रॉन, तो इलैक्ट्रॉन डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। कैथोड रेज से कैथोड रेज होंदियां इलैक्ट्रॉन, तो इलैक्ट्रॉन ते चार्ज होंदा नैगेटिव, ठीक है। तो ये करन दी लोड़ नहीं है वाला क्वेश्चन। कैथोड रे अगर नैगेटिव है तो नैगेटिव जड़ियाँ जाणगियां पॉजिटिव वाल, मतलब कैथोड नैगेटिव होंदी है, अनोड पॉजिटिव, तो कैथोड टू एनोड। तो ये भी रहन दो। चार्ज टू मास रेशो फॉर इलैक्ट्रॉन, इलैक्ट्रॉन का चार्ज होंदा 1.9 × 10 सॉरी 1.6 × 10⁻19, और जो अपने को मास होंदा दैट इज़ 9.1 × 10⁻31। ठीक है जी। तो जो तुसी इहनूं सॉल्व करोगे आंसर आएगा ये। तो ये लोड़ नहीं हैगी करन दी। हू डिस्कवर ऑयल ड्रॉप मैथड, दैट इज मुलिगन। एनोड रे मतलब प्रोटोन, प्रोटोन नूं गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया सीगा। ओके, अगर अपने को एनोड रे पॉजिटिव होंदियां तो ये ऑलवेज जाणगियां नैगेटिव वाल। तो नैक्सट
मास ऑफ प्रोटोन इज़ 1.6 10⁻⁻27। तो आ भी करन दी लोड़ नहीं हैगी, नॉट इंपॉर्टेंट। सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक होंगे इलैक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन। तो पॉजिट्रॉन इज़ नॉट अ सब एटॉमिक। हैवीएस्ट सब एटॉमिक इज़ न्यूट्रॉन, तो ये भी लोड़ नहीं हैगी। कैथोड रेज जड़ियाँ होंदियां इलैक्ट्रॉन्स होंगे। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल यूज़ की सी अपने एक्सपैरीमेंट ਲਈ। तो पॉजिटिवली चार्ज ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈਵੀ ਮਾਸ which occupies only a small volume in an atom is called the nucleus। So who discovered neutron? Chadwick। Mass number is sum of proton and neutron। Isotope doesn't have neutron, तो isotope 3 ਹੁੰਦੇ ਆ। हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम 1 1 1 2 1 3। तो 1 - 1 0, तो ये हाइड्रोजन च नहीं होंगे न्यूट्रॉन। सेम अटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंट मास नंबर है, तो ये होंगे आइसोटॉप्स। सेम कैमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे आइसोटॉप, क्योंकि अगर नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ही सेम है तो प्रॉपर्टीज भी सेम करेंगे। आइसोबार जिन्हों का अटॉमिक नंबर अलग होवे पर मास नंबर सेम होवे, तो मास नंबर इन्हों का सेम है, अटॉमिक नंबर अलग आ। आइसोलैक्ट्रॉन नहीं कि जिन्हों नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन सेम हो। इन्हों जो आइसोलैक्ट्रॉनिक स्पीशी किहड़ी है, Na पॉजिटिव, मतलब Na 11 होंदा, पॉजिटिव 1 माइनस करता 10, Na 11 नैगेटिव मतलब 1 ऐड करता 12। तो नियोन होंगे 10, सोडियम एलूमीनियम होंगे 13, 3 माइनस करते 10। मैगनीशियम का अटॉमिक नंबर 12, 2 माइनस करते 10, तो दिस इज आइसोलैक्ट्रॉनिक। क्लोरीन का होंदा 17, -1 1 इलैक्ट्रॉन ऐड किया 18। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन। न्यूट्रॉन सेम क्वेश्चन हाइड्रोजन च नहीं प्रेजेंट होंगे। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किहदी होगी, तुसीं विबग्योर लिख दो, विबग्योर, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप वेवलेंथ इनक्रीज होंगी, मतलब जो इदा जाते हैं वेवलेंथ इनक्रीज, ठीक है। तो जो आप इधर नूं जावांगे फ्रिक्वेंसी इनक्रीज होंगी है। तो लास्ट से किहड़ा होंदा रैड, दैट्स वाई दी वेवलेंथ जिहड़ी है वो ज़्यादा होएगी। तो फ्रिक्वेंसी किहदी होएगी, वायलट कलर दी। सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन, प्रोटोन एंड इलैक्ट्रॉन। प्लैंक कॉन्सटेंट दी पता वैल्यू 6.2 × 10⁻31 34। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ हैव, तो ये लोड नहीं है। फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट हुज वेवलेंथ इज दिस, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रिक्वेंसी c/λ। सी लाइट की कितनी होंगी है 10⁸, फ्रिक्वेंसी 400 × 10⁻10। सॉल्व करके आंसर आएगा दिस वन। पैकेट ऑफ लाइट में आप क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। तो जो मिट होंगे दैट इज़ फोटोन, फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट के अकॉर्डिंग। तो वेवलेंथ इज द डिफरेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ। तो इजेक्शन ऑफ इलैक्ट्रॉन इज इन फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट, ठीक है। तो अभी एनर्जी ऑफ फोटोन इन जाउल। तो वेवलेंथ अपने को इन्नी है, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। वेवलेंथ दी है hc/λ। वेवलेंथ हैगी अपने को 9, स्पीड होंगी है 3 × 10⁸, ठीक है। प्लैंक 6.62 × 10⁻34। तो इलैक्ट्रॉन इजैक्टन फ्रॉम मैटल सरफेस उन्होंने फोटो इलैक्ट्रॉन बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी थ्रैशहोल्ड चाहिए होंगी है इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करने लई। फ्रिक्वेंसी पता करनी है, वेवलेंथ दी है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी इज c/λ। c इज 3 × 10⁸, 3.1 12 × 10⁻³ इज दी वेवलेंथ। एनर्जी पता करनी है, फ्रिक्वेंसी दी है, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। h भी पता, न्यू भी पता, डायरैक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होंगी एक्सरे की, तो एक्सरे आउंदियां, ठीक है, UV आउंदियां, इंफ्रारैड आउंदियां, माइक्रोवेव्स होंदियां। इदां जो आप स्पैक्ट्रा देख लो, इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रा, वेवलेंथ जी वो इनक्रीज करती है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करती है। तो एक्सरे लीस्ट। नेक्स्ट हू डिस्कवर फर्स्ट यूज्ड कांस्टेंट इज मैक्स प्लैंक। तो ये लोड नहीं हैगी। यूनिट ऑफ वेवलेंथ हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट, नंबर ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन इजैक्टेड जिन्ने उन्ने इजैक्ट होंगे जिन्नी इंटैंसिटी होएगी लाइट की। रेडिएशन लाइक लाइट एंड हीट आर कॉल्ड एनर्जीज। तो सैट ऑफ 4 क्वांटम नंबर हैल्प्स टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इलैक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हो सकते, एक ऑर्बिटल 2। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑर्बिटल होंगे। तो
ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ 2l+1। ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ 4l+2। ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਟੈਲ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ ਤੋਂ ml ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ 0 ਆ ਤਾਂ s ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ +-1 ਆ ਤਾਂ 3 ਹੋਣਗੇ। ਨੋ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਦੇ ਵੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਪੌਲੀ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ s 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਔਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ 1। ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨ ਡੀ ਲਈ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ 2 ਤੋਂ 10। n2 ਆ, l1 ਆ, l1 ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ p ਲਈ ਤੋਂ 2p। तो पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर 4p है, ठीक है जी। तो 4 n होएगा 4, l p ਲਈ ਹੁੰਦਾ 1, ml ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ -1, 0 +1 तो ± ਹਾਫ ਸਪਿਨ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ। ਔਰਬਿਟਲ ਆਰ ਹੁਣੇ ਔਰਬਿਟਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ 4th ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਔਰਬਿਟਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ n² ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। n4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन विद n4 मतलब 4th एनर्जी लेवल तो 4 का स्केयर n का स्केयर 16, ठीक है जी। नंबर ऑफ सब शेल इन प्रिंसिपल शेल तो n इज सब शेल, l इज सब शेल। नोडल प्लेन n-1, ठीक है। तो मैनी शेल्स आर कैलकुलेटेड बाय 2n²। शेप ऑफ ऑर्बिटल डिटरमाइंड बाय एंगुलर कि s आ p आ d आ। ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ 3p ਦੀ 4s ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ 3d ਨਾਲੋਂ 4s ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 4p ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। n3 ਹੈ ਤਾਂ l ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2 1 0। n4 ਆ, l1 ਆ, 4 1 ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ p 4p। n3 ਹੈ l1 ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ p, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ओके इलैक्ट्रॉन फाइंड करने तो m0 किहदे लई हुंदा s लई, ठीक है। तो 3p s लई किन्ने होणगे 2। किद्दां ये 0 हुण s लई किद्दां आ गया तो दस दें 3p +-1 0 +1 तो 3p ऑर्बिटल होया ना, तो ये फुली फिल्ड किन्ने l च आए इलैक्ट्रॉन 2। नोडल एरिया 2 - 1। इनकरैक्ट 2d नहीं एग्जिस्ट करता। नो पेयरिंग उदों तक नहीं होएगी जब तक सारा सिंगली फिल्ड नहीं होंदा हंट्स रूल के अकॉर्डिंग। हाईएस्ट एनर्जी 4। तो ये 150 क्वेश्चन सीगा सैकेंड चैप्टर का। अगर ये कुछ ना समझ लगा, कोई प्रॉब्लम होई, ठीक है, तुसीं कमेंट सैक्शन च कमेंट करके पूछ सकते हो। तुहानूं PDF टैलीग्राम पर मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सबसक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।